So tell me, why should we hire you? Because you are hiring, right? No, you didn't understand. Yes, we are hiring, but why should we hire you? Because you called me for interview, right? And you liked my profile? Yes, my dear, we liked your profile, and that's why we called you for an interview. But what I am trying to understand is what makes you better than other candidates who are here for an interview today and looking forward to join for that position. Um, I don't know about other candidates, and I think you liked my profile. I sent you my CV, and I'm looking for a job. I need money, and you're hiring. So that's why. So you're here just because you want money and you want this job? You know what? Never mind. जब पहली बार मुझसे ये सवाल इंटरव्यू में पूछा गया था एट दैट टाइम दिस वॉज माई रिएक्शन. हाँ, वो बात अलग है कि मैंने रिक्रूटर को ये नहीं बोला, बट जब भी कोई रिक्रूटर मुझसे ये स्पेसिफिक सवाल करता है तो मेरा मन करता है कि मैं उनको गुस्से से बोलूं कि मेरा टाइम खोटी करने के लिए बुलाया था. यू डोंट नो व्हाई यू शुड हायर मी, बट एज वी ऑल हम ये सब चीजें नहीं बोल सकते. एंड in this particular video, I am going to exactly share on how you should answer this question so that you are able to land your dream job. हम इस वीडियो में सब समझने वाले हैं कि रिक्रूटर्स ये सवाल क्यों पूछते हैं, किस तरीके से आपको इसका आंसर करना चाहिए, so that you stand out among the crowd and between your competitors. So watch this video till the end. Let's uncover the magical answer to this question. Stay with me till the end because I am going to reveal everything. And not just that, I am also going to provide a sample template at the end of the video. Without wasting any more time, let's quickly deep dive into it. Hi, you're watching Coach. Welcome to my channel. I assume अगर आपको ये वीडियो मिला है, so either you are my lovely subscriber or you are looking for job change, you are actively searching for jobs, you need real-time job notification, interview tips, help with communication, markets, current affairs, news and everything. और अगर आप अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं then this is the right platform for you because I cover such things and I make sure that with my experience I am able to deliver and cater to the needs of the people who don't know where to go and whom to consult. And thank you so very much for all the love and support because together we have got 500 subscribers. I know it may not be a big number, but it means a lot to me. At least I feel कि मेरे जो efforts हैं वो recognize हो रहे हैं और at least जिन लोगों को help की ज़रूरत है उनको genuine help मिल रही है मेरे through. So that's what I feel. So thank you so very much. I am really grateful to all of you out there for giving me all the love, all the support. And I'll try my best कि मैं आपके ट्रस्ट को, आपके होप को कंटिन्यू रखूं और मैं जितना हो सके उतना पॉजिटिविटी विद ट्रू ऑनेस्टी एंड पैशन के साथ आपके लिए ऐसा अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूं. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि रिक्रूटर्स ये सवाल क्यों पूछते हैं. वेल, जो मैंने आगे सबसे वीडियो के पहले जो ड्रामा किया था ऑब्वियसली वो सब होता है, बट इन जनरल आई विल गिव यू अ वेरी लॉजिकल कॉन्सेप्ट ओवर हियर. द थिंग इज कि एक पोजीशन के लिए जस्ट अज्यूम इमेजिन कि एक पोजीशन एक कंपनी में एक जॉब के लिए 10 लोगों की हायरिंग चल रही है. कंसिडरिंग द एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया एंड ऑल द अदर फैक्टर्स, सिस्टम या कंपनी 20 लोगों की प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करती है. ठीक है, अब जॉब ओपनिंग सिर्फ 10 लोगों के लिए है तो ज्वाइन कितने लोग कर पाएंगे? सिर्फ 10 लोग. लेकिन इंटरव्यू के लिए कितने लोग आएंगे जिनका कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है? 20 लोग. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग द जॉब इज 50-50 स्ट्रेट, क्योंकि 20 में से सिर्फ 10 बंदे ही सिलेक्ट होंगे. तो आपके chances of getting the job and securing that job is only 50%. Other than all the other questions जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, this is one of a crucial question which you must prepare before going for any interview. And not just that आप fresher हैं, आप experienced हैं या आप किसी particular background से आते हैं, कुछ ऐसे basic questions होते हैं like tell me something about yourself, your strengths and weaknesses, this question why should we hire you and few more जिसके regarding मैंने already एक short video post किया हुआ है. और जो
पहले वाले 2 क्वेश्चन है उनके लिए एक लॉन्ग वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, सो यू मे फील फ्री टू वॉच दैट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट क्योंकि रिक्रूटर ये जानना चाहता है कि आप इस कंपनी के कोर वैल्यूज के साथ कितना अलाइन करते हैं एंड व्हाट मेक्स यू अ बेटर कैंडिडेट देन द रेस्ट ऑफ देम। क्योंकि 20 लोग इंटरव्यू देने आए थे, आप 10 सिलेक्ट हो सकते हैं एंड द प्रोबेबिलिटी इज 50-50। अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा एंड जो भी मैंने स्क्रिप्ट पहले बोली थी उसके हिसाब से कि हमें कैसे पता होगा कि दूसरे कैंडिडेट्स कैसे हैं। दैट्स वेरी ट्रू। आप उस इंटरव्यू के अंदर दूसरे कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करने नहीं जाएंगे, आप खुद को रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज द रीजन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिक्रूटर ये जानना चाहता है कि जितने लोग आए हैं उनमें से आप सबसे बेहतर क्यों हैं या आपको ये पोजीशन क्यों मिलनी चाहिए। What makes you a better person or a better candidate for this particular job role, while understanding your intentions, your strengths, your weaknesses and to really understand कि आप ये जॉब क्यों चाहते हैं, जिसको हम आगे कवर करने वाले हैं। But let's stick to the recruiter's understanding that why recruiter is asking you this question. Okay, so this is the first part of it. Now we will quickly understand कि आपको इसको कैसे आंसर करना चाहिए। Now बिफोर आई जम्प इन टू दैट मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ। अनलाइक माई अदर 2 वीडियोज जिसमें मैंने टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कवर किया था, मैं इस वीडियो को लिटिल डिफरेंटली कवर करने वाली हूँ बिकॉज आई हैव रियलाइज वन थिंग कि टेम्पलेट्स तो आपको बहुत मिल सकती हैं और आजकल इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप चैट जीपीटी से जा करके या किसी भी ऑनलाइन टूल से जा करके या गूगल पर भी लिख देंगे कि प्लीज गिव मी अ टेम्पलेट फॉर हाउ टू आंसर व्हाई शुड वी हायर यू का आंसर, वो भी लिख के दे देगा। सो माई आइडिया हियर इज टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग कि आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं अपनी लाइफ में और इन जनरल भी ओवरऑल भी, तो आपको ये आंसर कैसे हेल्प करेगा और आपको इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करना है ताकि आपको पता हो कि ठीक है ये स्ट्रक्चर है एंड दिस इज हाउ आई शुड बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन रादर देन गिविंग यू अ स्क्रिप्ट। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जितनी मर्जी स्क्रिप्ट आप फॉलो कर लो, एक रिक्रूटर बहुत समझदार होता है। बीइंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ the role, I can genuinely tell you we can figure it out whether it's fake, whether it's scripted or whether it's coming naturally. So my idea is to give you a genuine thing, एक स्ट्रक्चर, ताकि आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपनी खुद की स्क्रिप्ट बना सके। एंड फॉर द बिगिनर्स, फॉर द फ्रेशर्स जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, उनके लिए मैं सबसे एंड में वीडियो के 2 सैंपल टेम्पलेट्स डाल दूंगी, एक फ्रेशर्स के लिए और एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए, ताकि आप उसको फॉलो कर सकें फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस ओनली। ओके, नाउ टू क्विकली अंडरस्टैंड हाउ यू शुड बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा तरीका शेयर करूंगी। आपको 3 चीजें हैं जो नोट करनी है और जो आपको पता होना चाहिए। वो है, उसमें से मतलब फर्स्ट चीज है कि आप किस जॉब रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आई नो इट मे साउंड लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू कि ये कैसी चीज हो गई कि हमें जॉब रोल के बारे में पता होना चाहिए, हमने अप्लाई किया था। वेल, ये मेरे साथ खुद भी हुआ है एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। जब हम जॉब हंट पे होते हैं तो हम बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, हम किसी एक जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि हमने देखा अच्छा कस्टमर सर्विस, ओके कस्टमर सर्विस तो मुझे आता है या मुझे पता है जॉब रोल क्या होता है। सो वी एंड अप जस्ट चेकिंग कि अच्छा कस्टमर सर्विस, नीचे जाके स्क्रॉल करते हैं, ऊपर से ऐसे ग्लांस में वी रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड वी अप्लाई फॉर इट। एंड जितनी भी जॉब्स हमने अप्लाई की होती हैं उनमें से किसी एक जॉब के लिए अगर हमारा कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो जाता है, द प्रॉब्लम इज कि हमने एक्चुअली में जॉब रोल के बारे में नहीं पढ़ा होता, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कभी कभी कुछ जॉब रोल्स के अंदर कि कस्टमर सर्विस का जॉब रोल है वो हम सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक कंपनी स्पेसिफिक होती हैं, जो एक कंपनी अपने कैंडिडेट्स में ढूंढ रही होती है। दैट इज देयर कोर वैल्यूज, द वे देयर कंपनी वर्क्स, देयर वर्क कल्चर, वो आपको सिर्फ तभी पता चलेगा जब आपने उनका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको पढ़ के अप्लाई करो, आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट जिस जॉब ओपनिंग के लिए आप जा रहे हैं उसको जरूर पढ़ लेना। मे बी इफ आई गिव यू अ टिप, तो जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर फेस टू फेस इंटरव्यू है, तो आप लोकेशन वेन्यू से में जाते वक्त ऑन द जर्नी यू कैन रीड अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन, और आपने जहाँ पे अप्लाई किया होगा वहाँ पे आपको ईमेल में कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आया होगा, सो प्लीज रीड अबाउट इट। दैट्स फर्स्ट टिप। सेकेंड थिंग, आप कंपनी के बारे में पढ़ के जाइए। एज आई एम्फेसाइज्ड ऑन कंपनी वैल्यूज, कंपनीज गोल्स, वो आपके आंसर में अलाइन करना चाहिए। हाउ?
I'll tell you because it's very important. कंपनी मैं आपको दो सिनेरियोज देती हूँ तो उसको लॉजिकली समझते हैं. एक कंपनी है, एक स्टार्टअप कंपनी है, कंपनी ए नाम है उसका, और वो एक स्टार्टअप कंपनी है. और जो एक कंपनी है उसका नाम हम रख देते हैं कंपनी बी, जो कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है. आप किसी भी कंपनी का नाम अपने दिमाग में सोच सकते हैं. ये दोनों ही कंपनीज का जो वर्किंग पोटेंशियल होगा और जो वर्किंग स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा. कैसे, मैं समझा देती हूँ. कंपनी ए जो है वो अभी अभी मार्केट में आई है, वो एक स्टार्टअप कंपनी है. सब लोग उस कंपनी के बारे में जानते नहीं है. तो हो सकता है कि जिस भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में वो कंपनी डील करती है उसके बारे में बहुत सारे लोग ना जानते हो. सो स्टार्टअप की जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय से शायद ये एक्सपेक्ट करती है कि वो जो भी इंसान मेरे कंपनी में एज एन एम्प्लॉय हायर होता है वो प्रोएक्टिव हो, उसको बताना ना पड़े कि ये काम है, ये काम है, ये काम है. उसको सब पहले से आता हो और वो अपनी नॉलेज से कंपनी को बेनिफिट करे, बिकॉज द कंपनी इज नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड. कंपनी के बारे में पता नहीं है लोगों को. उस इंसान को हमें काम बताना ना पड़े, वो प्रोएक्टिव हो, उसको चीजें पता हो, वो समझदार हो, उसके पास पहले से एक्सपीरियंस हो और उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत ना पड़े, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम, दे आर अ स्टार्टअप कंपनी. ऑन द अदर हैंड कंपनी बी, जो कि बहुत एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, जिसको मार्केट में हर कोई जानता है, वो कंपनी आपसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं करती. जो कंपनी बी होगी वो आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, वो आपको टाइम देगी चीजें समझने का, चीजें इम्प्लीमेंट करने का, उनके वर्क कल्चर में ढलने का. उसका रीजन ये है कि वो उस फेज से ऑलरेडी निकल चुके हैं. नाउ दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स देयर ब्रांड रेपुटेशन, देयर कल्चरल वैल्यूज. उनके कुछ कोर वैल्यूज होंगे, इंटीग्रिटी और मे बी डिसिप्लिन, privacy एंड ऑल द अदर टर्मिनोलॉजीज आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर. उनका मेन फोकस वो है. They are now focused towards building a brand, building a reputation. जैसे आपने बहुत जगह सुना होगा कि जो इंसान भी गूगल जैसी कंपनी ज्वाइन करता है उसको गूगल ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगता है. Why? It's because of the culture. अब गूगल अपने स्टार्टअप फेज में नहीं है, वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है और वो चाहते हैं कि वहाँ पे जो लोग भी आए वो लॉन्ग टर्म उस कंपनी के अंदर रहे, लॉन्ग टर्म अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें. एंड दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस. नाउ अगर आप कंपनी ए के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, सो यू कैन नॉट टेल कि आई विल ओनली वर्क फॉर 8 hours अ डे, बिकॉज मे बी जो स्टार्टअप वाला है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 12 घंटे काम करो. एंड आई एम श्योर ये चीज बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने भी स्टार्टअप्स में काम किया है. वहां पे बहुत काम करवाते हैं वो लोग आपसे. ऑन द अदर हैंड देयर आर वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जो कि दे आर वेरी पर्टिकुलर दैट यू शुड लॉग आउट स्ट्रेट ऑन टाइम, लाइक दे आर वेरी डिसिप्लिन. दे आर लाइक आपकी शिफ्ट इतने बजे स्टार्ट हुई है, यू कम टू ऑफिस, डू योर वर्क and exit your office this particular hour. We don't care. We just want you to come here, work as per the discipline, as per the schedule, और जो काम आपसे बोला गया बस उतना कीजिए, हमने आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा है. सो हर कंपनी डिफरेंट होती है. मैंने आपको सिर्फ ये 2 कंपनी से एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है. ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, डिफरेंट वर्किंग स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट वर्किंग कल्चर होता है. दिस मे बी अ कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन फॉर अ पर्सन हु इज वर्किंग इन कंसेंट्रिक्स. बट अगर मैं किसी और इंसान से पूछूं जो शायद TCS में काम कर रहा होगा, उसका पर्सपेक्टिव और उसका एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट होगा. एंड सिमिलरली इफ आई आस्क समवन हु इज वर्किंग इन अ स्टार्टअप, तो उनका एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट होगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी. कोई भी कंपनी सेम नहीं हो सकती. सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो इज कि वो कंपनी के गोल्स क्या हैं, उस कंपनी की वैल्यूज क्या हैं और वो कंपनी क्या चाहती है अपने एम्प्लॉइज से. Once you know it, you will hit the bullseye of this answer. And the third thing, which is the most important thing, like one of the most important things once again, is your behavior, your experience, or your nature. How is it going to align with the company values and the job description? What I mean by that is, elaborate कर देती हूँ. अगर आप, मैं दोनों के लिए elaborate करूँगी. अगर आप एक experienced candidate हो तो आपने किसी ना किसी कंपनी में जरूर काम किया होगा और आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी होगा. आपका एक इंडिविजुअल नेचर बन चुका है, आपने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी हैं, आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है और माइंडसेट आपका बन चुका है, ठीक है. तो आप जिस टाइप की पर्सनालिटी अब बन गए हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट होने के बाद, how is that going to benefit the recruiter, the company, and going to serve purpose to the job role you are applying for? Example, आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं जिसने कस्टमर सर्विस में काम किया है, ठीक है. कस्टमर सर्विस वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, उनका जनरली ऐसा बोला जाता है कि
आप में एम्पैथेटिकल नेचर होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए. You should be polite, you should be passionate about working, you should be willing to adhere to policies and be calm. क्योंकि आप किसी भी कस्टमर सर्विस डोमेन में होंगे, जो भी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि देयर आर सिचुएशंस जहाँ पर आप किसी परेशान और एंग्री कस्टमर का फोन आता है एंड देन यू आर हैंडलिंग देम, तो आपको उन्हें गालियां देने का मन कर रहा होता है, बट यू पुट देम ऑन होल्ड और यू म्यूट योरसेल्फ एंड देन यू आर लाइक क्या परेशान कर रहे हैं मुझे. बट आप कॉल पर नहीं पता चलने देते हो कस्टमर को, जो भी आपसे बात कर रहा होता है, कि आप बहुत इरिटेट हो रहे हो उनसे. वो चीज़ अलग है, उन्हें पता चलता है, इज डिफरेंट, बट आप पता नहीं लगने देते हो. आप कॉल में उस चीज को एविडेंट नहीं कर सकते. यू आर ऑलवेज लाइक सॉरी मैम, आई विल हेल्प यू, सॉरी सॉरी. सो वो एक आपने नेचर और एक एक्सपीरियंस डेवलप कर लिया है, राइट? लेकिन अगर आप सेल्स के प्रोफाइल के लिए जाते हो, यू कैन नॉट बी दिस पोलाइट, यू हैव टू बी लिटिल एग्रेसिव. क्योंकि सेल्स का काम क्या होता है? कन्विंसिंग पावर. यू नीड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्ट विद द कस्टमर. उनको सेल कर सकें आप उस चीज़ के बारे में, उस प्रोडक्ट की नॉलेज होना, उस प्रोडक्ट के बारे में बताना, वो प्रोडक्ट किसी बायर के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, वो सब चीज़ें. सो एक्सपीरियंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट. नाउ नो मैटर आप किस एक्सपीरियंस और फील्ड से आते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है या आपने जो नेचर वहाँ से पिकअप किया है, वो इस करंट कंपनी को कैसे हेल्प करने वाला है, कैसे बेनिफिट करने वाला है, इज एवरीथिंग. एंड दैट इज समथिंग दैट्स गोना चेंज योर कंप्लीट स्क्रिप्ट. अब अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी किसी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया या किसी जॉब में काम नहीं किया है, लेकिन आपकी खुद का एक पर्सनालिटी तो है ना, आपकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है, आपका नेचर है, आपके कुछ ट्रेड्स हैं. हम सीखते हैं वो एक चीज़ डिफरेंट है, बट जब आप एक कंसिडर योर सेल्फ एज अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक कंप्लीट ब्लैंक शीट ऑफ पेपर. लेकिन आप में खुद की कुछ पर्सनालिटी तो होगी ना. कुछ लोग गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कुछ लोग जनरली बहुत पोलाइट होते हैं, कुछ लोग नेचुरली बहुत ही इमोशनल होते हैं, कुछ लोग लड़ाकू होते हैं, कुछ लोग रोने लग जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, रोतड़ू होते हैं. सो आपका एक इंडिविजुअल नेचर भी होता है, और वो कैसे बनता है? आपके लाइफ स्टाइल से, आपके लाइफ एक्सपीरियंस से. सो योर पर्सनैलिटी is also going to play a major role while constructing this answer to the question that is why should we hire you. तो अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं और अगर आप किसी ऐसी जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं जो कि सेल्स में है, तो आप अपना नेचर बताएंगे कि आई एम अ वेरी आई एम अ पर्सन हु हैज वेरी गुड कन्विंसिंग पावर. मैं लोगों को कन्विंस बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मेरे अंदर लर्निंग भावना बहुत ज़्यादा है. आई एम अ गुड कैंडिडेट who can learn things like this and I'm capable of learning new things. I always want to explore new things. तो ये आपका नेचर है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये आपका नेचर है, करेक्ट? अब आप कस्टमर सर्विस के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, सो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन से दैट आई एम अ नेचुरली काम पर्सन और मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, राइट? वो बात अलग है कि लोगों को गुस्सा आता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि आपका एक जो इंडिविजुअल बिहेवियर होता है वो भी बहुत मैटर करता है किसी भी जॉब रोल में काम करने के लिए, बिकॉज आपके नेचर से आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज हो जाती हैं. तो अगर आप नेचुरली स्लो स्पीकर हैं, तो कस्टमर सर्विस वालों को चाहिए होता है कि स्लो स्पीकर हो. कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए होता जो ऐसे राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोलता है. अ पर्सन हु एक्चुअली स्पीक्स कामली, हु स्पीक्स सॉफ्ट, ताकि कॉल पर जो कस्टमर उन्हें सुन रहा है उसको वो आवाज प्लीजिंग लगे. सो आपका जो इंडिविजुअल नेचर है, इंडिविजुअल बिहेवियर है, आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं बाय क्लेमिंग दैट हाउ इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, हाउ इट्स गोइंग टू बेनिफिशियल फॉर द जॉब रोल. नाउ टू गिव यू अ वेरी क्विक जिस्ट how you should be portraying this answer. मैंने ऑलरेडी हर एक चीज़ एग्जाम्पल्स के साथ समझाई है, बट मैं स्टिल आपको ये समझा देती हूँ. आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं और आप कस्टमर सर्विस के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है? यू अंडरस्टूड कि कंपनी जो है एस्टैब्लिश्ड कंपनी है या फ्रेशर कंपनी है, आपने डिसाइड कर लिया. एंड यू सी की कंपनी का जो है जो कोर वैल्यूज हैं, जो कोर गोल्स हैं, एस्टैब्लिश्ड कंपनी ले लेते हैं, कोर गोल्स हैं वो है डिसिप्लिन. They are very much into reputational, like उनकी reputation बहुत प्यारी है. They want somebody who caters to that. And the job role है उसमें वो ये emphasize कर रहे हैं that we want somebody who has very calm nature. और आप एक फ्रेशर हैं तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, नो मैटर आप गुस्से वाले हैं, बट हर इंटरव्यू में हम हर एक चीज़ सच भी नहीं बोल रहे होते हैं. बट दैट्स द आइडिया फॉर यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो कि हाउ यू शुड बी आंसरिंग दिस. सो you're a fresher, आपने कंपनी के गोल्स पता कर लिए, जॉब रोल पता कर लिया. In the interview you can say that I am not sure about the other candidates who are present here today.
for this job role. But I do know about myself, and as a person, I am naturally very calm, soft-spoken, and very understanding person, very empathetical person. And I am very keen on learning new things and a very disciplined person. And I feel being part of this company, as this company also believes in discipline following, I think this personal trait would help me align with the company goal while making sure that I deliver my best services for this job role that deals in customer service, and my naturally calm, empathetical behavior would help me assist the clients to the best of my ability. If you answer it like this, no matter आप गुस्से वाले हैं, आप जो भी है, the recruiter is gonna be like, yes, this is the person I'm looking for. इसने मेरी कंपनी के बारे में पढ़ा है, इसको पता है मेरी कोर वैल्यूज क्या है, इस इंसान को पता है कि मैं किस टाइप का कैंडिडेट ढूंढ रहा हूँ, ये नेचुरली काम पर्सन है, इसका नेचर है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड कैंडिडेट फॉर माई जॉब प्रोफाइल. दैट्स योर थिंग. आप दूसरे कैसा इंटरव्यू देंगे वो मैटर नहीं करता, बिकॉज ऑब्वियसली chances are 50-50 only. But in your 50%, make sure that you are delivering your 100% in that answer. Now, if I talk about an experienced candidate, तो अगर आप एक experienced candidate हैं, और मैं थोड़ा twist वाला दे देती हूँ इसमें, आप जा रहे हैं कस्टमर सर्विस के रोल के लिए, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस था वो सेल्स में था. ठीक है, तो मैं ऑपोजिट कर रही हूँ ताकि इस चीज़ में लोगों को प्रॉब्लम ना हो. स्क्रिप्ट में दोनों में डाल दूंगी. नाउ आप कस्टमर सर्विस के लिए जा रहे हैं, आप हो सेल्स बैकग्राउंड से. नाउ इट्स इवन मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू कन्विंस द रिक्रूटर कि आप कस्टमर सर्विस के लिए क्यों अच्छे हैं जबकि आप सेल्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं. So why should we hire you? You can say, as today I'm appearing for this job interview that deals in customer service. Though me being from a background with a prior experience in sales, I personally believe that my prior job experience and my personality truly aligns with this role. If I give you an example, in my previous sales role, I used to handle calls, and before going to the sales stage, there were multiple things that I used to take care of. That is establishing a connect with the customer, being polite with them, being calm with them, confidently learning the product and the services that the company is dealing in, so that I am able to communicate effectively the uses of those particular services to my buyers, while ensuring that the company's reputation is being built in the market and representing the face of the company. I have always aligned true to myself and have honestly pitched my product or services that I used to deal in, so that it's not causing any sort of damage to the company's reputation, and also not hampering the customer's experience at all, because I don't believe in providing something to any customer which is built on a weak foundation of a lie. If you answer your question like this, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट नहीं खुली थी, मैंने ये इमीडिएटली आपको बना करके बोला मेरे माइंड से. दिस इज हाउ यू शुड आंसर इट. क्यों? क्योंकि आपको जॉब रोल पता था, आपको कंपनी का वैल्यूज पता था, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुली अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को इनकलकेट कर दिया आंसर में. यू कैन ऑल्सो एड वन लाइन दैट आई पर्सनली फील दैट माई प्रीवियस एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर मी, एंड मतलब end में when you are done with this particular kind of structure, you can say that I feel that all the experience that I have gained throughout these years and throughout these months in this so and so company is going to benefit me, enhance my character, and will help me deliver my best services in this company. So together as a collaborative effort, I am willing to learn from you, willing to learn with you, and learn new things while bringing the good traits and experiences that I have gained over these years from my previous job. If you add your answer and compile your answers like this, recruiter would be flaunted, or the way you represent it also matters to the recruiter, but this is how you should answer it. तो मैंने आपको इसका structure समझा दिया है. अब as I mentioned in the end of the video, I will give you some script. mention कर दूंगी for freshers, for experienced, cross functional job roles के लिए, so that you are able to answer it and practice it on how to answer this question, that is, why should we hire you? That's it for this particular video. I hope you like this video, and once again, thank you so very much for all the love and support. And now this is the part you may feel free to skip, but it's like kind of important, kind of not important. I have read a lot of your comments, and a lot of you have been asking me on how to enhance communication skills.
So I did reply to few of the comments, but वो बार बार pop up हो रहे हैं, so it's becoming difficult for me to comment the same thing on each and every single like reply to all the comments. Hence I'm telling it to you now that I'm working on it and I want to deliver quality product, like quality video. Just for the sake of making video मैं नहीं डालना चाहती हूँ. So give me some time. I'm working on it for you to understand on how to enhance your communication skills और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने साइड से कर सकते हैं और everything, the problem areas, the solution and a complete structure, complete course, something like that. I'm working on it. So give me some time and I'll soon come up with it and I'll try my best कि आपको उन वीडियोस से जेन्युइन हेल्प मिले ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन ठीक कर सको and we can work together in this. Thank you so very much for watching, and if you are somebody who's looking for job updates, you're on a job search, you need information related to markets, current affairs, news, और अगर आप अपनी लाइफ में कोई positive change experience करना चाहते हैं, then stay tuned for my upcoming content. ऐसा ना हो कि मैं कुछ बहुत अच्छा पोस्ट करूँ और just because you were not aware of it, वो opportunity आपके हाथ से चली जाए. So stay tuned. I wish you all the very best. Take care. Bless you. Happy learning. Bye.